everyone, this is Priyanka and you're watching Organizopedia. We all have small miscellaneous items in our home like thread, needle, buttons, colors, washi tapes, measuring tapes and so many other small items. We usually never get time to properly organize them. Instead of that, we just simply dump them in the drawers. And at the time when we actually need these small items, we waste a lot of our time finding them. So in today's video, I'm going to share 5 very easy DIY organizers, and believe me, it's very easy to make them. It will hardly take like 5 to 10 minutes to prepare them. And I have not decorated these items a lot because the main purpose of these organizers was to make my space more organized so that it would be easy for me to access those small things. So without any further ado, let's get into the video now. So for the first DIY, we need a bowl for mixing colors, which is blue and white, a paintbrush of 2 inches and a round cookie box. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि I have used this Berger Easy Clean paint because I already have this one, so I go ahead to use this only. But आप चाहें तो एक्रेलिक और ऑयल पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर अब मैंने डार्क नेवी ब्लू कलर का पेंट उसमें ऐड किया हुआ है. And here I am mixing both these colors because I want a very light shade of blue color. So just mix both these colors very well. और आप चाहें तो कोई भी तरीके का और कोई भी different shade of color यूज़ कर सकते हैं. But make sure to mix it well. Otherwise जो shade है वो कहीं पर patches में आ जाएगा जो कि बहुत गंदा लगेगा बॉक्स के ऊपर. And now here I am applying this paint on the lid of the cookie box, and you have to apply like 2 to 3 coats. तभी आपको एकदम परफेक्ट ब्लू का शेड आएगा. बिकॉज ये जो पेंट है ये वॉल पेंट है, तो इस टिन के बॉक्स के ऊपर करने में वैसे भी इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यू हैव टू अप्लाई लाइक गुड 2 to 3 कोट्स टू गेट द परफेक्ट कलर ऑन द टिन बॉक्स. And once when you're done coloring, take a foam sheet. Foam sheet की जगह पर you can also use carton boxes, a scale for measurement and a pencil for marking. तो अभी हम यहाँ पर में इस cookie box का जो depth है उसको measure करेंगे, which is around 6 centimeters, and we are also going to measure the diameter, which is around 18.5 centimeters. तो हम यहाँ पर 2 strips cut करेंगे जो होंगी 18.5 centimeters long, और जो उनकी विड्थ होनी चाहिए दैट इज़ अराउंड 6 or 5 सेंटीमीटर्स, या फिर जो भी आपका बॉक्स है उसके मेजरमेंट के हिसाब से यू हैव टू कट 2 strips. सो हेयर आर द 2 strips विच इज़ 18.5 centimeters लॉन्ग एंड 6 centimeters वाइड. तो यहाँ पर जो शीट मैंने यूज़ करी है दैट इज़ फोम शीट. आप चाहें तो कोई भी तरीके का कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा फर्म होता है, दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस फोम शीट. अभी यहाँ पर मैं जो लेंथ था जो मेरा 18.5 था उसको मैं जस्ट हाफ में डिवाइड कर एक पॉइंट मार्क कर दूंगी इस फर्स्ट स्ट्रिप के ऊपर. ऐसे ही जो इसकी विड्थ है उसको भी मैं एग्जैक्टली हाफ में ही डिवाइड कर लूँगी. जो विड्थ रखी है वो है 5 सेंटीमीटर्स, तो उसका हाफ हुआ 2.5 सेंटीमीटर्स. तो 2.5 सेंटीमीटर्स पर आई विल मार्क अ पॉइंट एंड फ्रॉम देयर आई विल ड्रॉ अ लाइन. उस लाइन के अक्रॉस मैं एक कट लगाऊंगी और सेम मैं दूसरी वाली स्ट्रिप के ऊपर भी करूंगी. नाउ आई हैव इंसर्टेड बोथ द स्ट्रिप्स टुगेदर, और अब इसको इंसर्ट करने के बाद में मैं इसको इस बॉक्स के अंदर में रख रही हूँ. एंड नाउ हियर यू ऑल कैन सी आई हैव क्रिएटेड 4 divisions in this round cookie box, and here I am organizing all of my threads, measuring tape, cutters, needles, everything in this one box. मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई थी एंड आई वॉज जस्ट सर्चिंग नीडल, मुझे मिल नहीं रही थी. दैट इज़ वाई आई थॉट टू मेक सच काइंड ऑफ थ्रेड ऑर्गेनाइजर जहाँ पर चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हों, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये नहीं मिलती हैं तो काम बहुत ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ आई हैव मेड इट एंड इट्स वेरी ईजी. For the second DIY organizer we need plates जिनमें थोड़ी सी किनार हो या डेप्थ हो. ऐसी हमको 2 plates चाहिए हैं, and we need some marbles also.
because with the help of these three things we are going to create lazy Susan. तो इस तरीके से आप lazy Susan को ready कर सकते हैं. You can keep it on the kitchen countertops also to organize them. और अब मैं कुछ लूँगी, कुछ baskets पुराने, glasses, jam bottles, glasses के different sizes भी चलेंगे. तो इस तरीके से आपको जो लेजी सूजन बनाने के लिए आपको 2 प्लेट्स चाहिए और उन 2 प्लेट्स के बीच में हम मार्बल्स डाल देंगे. तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ग्लासेस लिए हुए हैं और जैम बॉटल्स हैं और ये जो ग्लासेस हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं. तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए कि सेम होना चाहिए. जस्ट इन 5 और 10 मिनट्स आपका जो DIY डेस्क ऑर्गेनाइजर है वो बन जाएगा. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माई डेस्क टेबल. तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर भी लगता है. इट विल इवेंचुअली मेक योर स्पेस लुक मोर ब्यूटिफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम. और ये लेजी सूजन है जिसकी वजह से इसको एक्सेस करना भी बहुत इजी हो जाता है. आप इसको टर्न करके इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. और इस वाइट बास्केट के अंदर मैंने कुछ क्रेयॉन्स रख दिए हैं ताकि इफ इन केस माई चाइल्ड ही इज कलरिंग, आई जस्ट टेक आउट दिस बास्केट फ्रॉम हियर, I give it to him, he'll color and then I keep it back on the table. So just in 5 or 10 minutes you can enhance the desk very nicely. So for the third DIY we need cereal boxes, measuring scale, scissor and a pencil. So first of all I'm going to cut all these flaps जो कि बॉक्स को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज आती हैं. तो उनको हमें सबसे पहले रिमूव कर देना है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल वी आर जस्ट गोइंग टू मार्क अ पॉइंट और एक डायगोनली हम एक लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे. एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे डायगोनली. And we are going to draw the same diagonal line at the other side of the box also. And then with the help of scissor, we are going to cut the portion which we have marked with the help of pencil. And now here I am just simply just decorating it a little bit. I'm just simply going to cover the 3 sides of this box because एक side तो पीछे stick हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं. That is why I have just covered the 3 sides of the cereal box. And here I'm just simply going to stick it on one of the cabinet doors in my kitchen. So here I'm using this 3M tape because ये थोड़ा सा strong होता है, firm होता है, ये load ले लेता है और बहुत जल्दी ये निकलता नहीं है. तो यहाँ पर मैं 3M टेप का ही यूज़ कर रही हूँ to stick it on the cabinet's door. And here I kept cling wrap, aluminium foil, and it's very nicely organized also. So now let's see how we can very nicely organize our drawers also. So here just a simple trick. You have to properly measure the length and the width of your drawer and how many divisions you actually wanted to create in your drawer. So for that you have to properly take the measurements, and once when you're done just take out any carton boxes. You can even use foam sheets to create these dividers, but ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं एक बार आपको इन कार्टन बॉक्सेस की हेल्प से भी बना करके दिखाती हूँ. और इतने स्टर्डी नहीं होते हैं बट इट विल इवेंचुअली सॉल्व द पर्पस. ये थोड़े टाइम के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर रह पाएंगे, कोई ख़राब नहीं होगा. एंड बिकॉज वी आर यूजिंग कार्टन बॉक्सेस तो वो उतना दुख नहीं होगा, आप दोबारा भी बना सकते हैं. आपके अगर डिविजन की जो नीड है वो कम या ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप दोबारा से न्यू स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं इन कार्टन बॉक्सेस से. तो जिस तरीके से अभी हमने थ्रेड ऑर्गेनाइजर के लिए इक्वल साइज में एक स्लिट मारा था, वैसे हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर भी स्लिट मारेंगे ताकि वो जो दोनों डिवाइड हमने करने के लिए स्लिट लगाया हुआ है वो प्रॉपरली एक दूसरे को होल्ड कर पाए. तो इस तरीके से कुछ मैं चाहती हूँ कि जो मेरा स्पेस है वो इस तरीके से मुझे इसमें पार्टीशन चाहिए. तो मैंने पीछे वाला पोर्शन जो एकदम लास्ट में है वहाँ पर मैंने कोई भी तरीके का डिवाइडर नहीं लगाया है और यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है वैसे ही स्लिट लगा करके. एंड दिस इज़ हाउ दिस होल थिंग लुक लाइक. तो जो रैंडम चीज़ें होती हैं जैसे कि डिफ्यूज़र्स के लिए जो मेरे पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो यहाँ पर रख दिए हैं. कुछ
विजिटिंग कार्ड्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है फैमिली के अंदर, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करी हैं, जैसे कि चार्जर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ करी हुई हैं। एंड यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक जार रख रही हूँ इन विच आई एम कीपिंग दी चेंज। कोई आता है डिलीवरी के लिए, सो इट्स क्वाइट हैंडी कि यहाँ पर मैं हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज दिस जार। बहुत रैंडम सी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, बट ये यूज़ फ्रीक्वेंटली होती हैं। For this last DIY we need, these are the tapes, aluminium foil wrap का जो box होता है that, a pair of scissors, and this is a long straw which you can very easily find it from any kind of stationery shop, and this is a velcro strips। आप ये optional है, आप इसको नहीं भी use करें तो भी चलेगा। तो ये जो वॉशी टेप्स थे उसकी हेल्प से आई विल डेकोरेट द बॉक्स अ लिटिल बिट, बिकॉज ये बॉक्स थोड़ा सा पुराना है, ये थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा था। सो आई थॉट कि अगर इसको हम टेप से ऑर्गेनाइज कर देंगे तो इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ और लाइफ मिल जाएगी और इसको हमें यूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कट दिस स्ट्रिप ऑल्सो, जो थोड़े से साइज़ में बड़ी है, इसलिए मैं इसको कट करूँगी। और आप देखेंगे कि मैंने इसको बॉक्स से 1 इंच बड़ा ही कट किया हुआ है, बिकॉज जो थोड़ी सी स्ट्रिप है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। और अब मैंने यहाँ 2 साइड में होल्स करके एक कोने पर मैंने स्ट्रिप को डाल दिया है, और यहाँ पर मैं सारे के सारे जो मेरे वॉशी टेप्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर नाइसली ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उस रॉड के ऊपर। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब जो लास्ट में है, जैसे कि मैंने बोला, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो ये वेलक्रो पैच लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज दीज टेप्स, और इनको कट करना भी बहुत आसान होता है। So this is it for today's video. I really hope you guys liked it. If so, then please do subscribe to my channel. Hit that like button and I'll see you in my next video. Till then, be organized and bye bye.